very good morning to all of you, and hope you people are good and you people are safe, because there are many diseases, there are many problems, but we are humans and we have the capability to fight, है ना? So we will struggle, we will fight, and we'll achieve what we want, है ना? So I hope that you people have studied the chapter thoroughly up to the part which we have discussed till the last class, and as we have said that we will be discussing the applications of atmospheric pressure in our day-to-day life today. So we will be doing the same today. We will be discussing the applications of atmospheric pressure today in our classes. So the first thing about which we will be discussing today will be the drinking straw. Drinking straw. Straw means pipe. So how this drinking straw by which we drink the cold drinks and the soft drinks, so how this works, how this is able, how we are able to suck the liquid with the help of the drinking straw. What is the phenomenon, what is the mechanism behind this which is taking place here, so you can see, you can actually observe, you can observe that when you in the starting, when you suck, when you put the straw, the upper end of the straw in your mouth and the lower end remains in the liquid, so at the very beginning when you suck the pipe, when you suck the straw, you can observe that only air goes into your mouth when you suck the straw. You can observe it means after studying this also, you can take a straw and you can do it, so in the very beginning, when you will suck the straw, you will see that some amount of air goes into your mouth. After that, the liquid starts going, so how the liquid starts going, why the liquid starts going, and why the air goes into your mouth, there are many questions which can arise. Okay, so let us unfold the questions one by one. Chalo, the first question, that why the air goes to your mouth. So you know that the straw which you have taken, it has some space, and it has a hollow space, and you know wherever and whenever there is a hollow space, the space is filled with gases, okay. Now one more question arises, that sir, if we don't suck it, the liquid doesn't come up to our mouth naturally, so what is the reason behind this? Bolo, what is the reason behind this? The reason is obvious, that the air which is present in the straw, that air is also applying a pressure, and the liquid which is in the bottle or in the glass or anywhere, that is also applying a pressure, and that pressure is actually greater, the pressure which will be greater, it will not allow the other particles to come to it. So at the first, when we suck the straw, they see that this air goes into our mouth. From where the air comes, that is the air which was present in the straw. Okay, so in the first, the air has gone into our mouth, means what? That the air which was present in the straw, which was preventing the liquid to come into the straw, it is in our mouth now. Okay, now when the air is reduced, the amount of air is lowered in the straw, जब एयर का अमाउंट हमारे स्ट्रॉ में कम हो गया, हम लोगों ने जब सक कर लिया, तब क्या होगा? तब वो जो भी एयर प्रेजेंट है, वो जो एक प्रेशर लगा रहा था, वो तो प्रेशर लो हो गया, मीन्स जो एक प्रेशर लिक्विड लगा रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा, और लिक्विड जो प्रेशर लगा रहा है वो कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मीन्स व्हाट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब ज़्यादा हो जाएगा, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तब लिक्विड जो है वो आने लगेगा,
स्ट्रॉ में, है ना। पहले क्यों नहीं आ रहा था? पहले क्यों? क्योंकि जो वहाँ स्ट्रॉ में जो एयर था, वो एयर प्रेशर जो था वो ज़्यादा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, है ना, इसलिए लिक्विड नहीं आ रहा था। अब क्या हुआ कि सिंस वी हैव सक्ड द स्ट्रॉ, तो क्या हुआ है कि जो भी एयर था वो उसमें से निकल गया है, और अगर एयर निकल गया है तो एयर प्रेशर भी रिड्यूस हो गया, ऑब्वियस सा बात। एयर प्रेशर रिड्यूस होने से क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो बढ़ गया, है ना। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा? वो पुश करेगा लिक्विड को, है ना, स्ट्रॉ में जाने के लिए, और पुश करेगा, और फिर हम लोग भी तो सक कर ही रहे हैं, तो बहुत ही इजीली जो है हम लोग पी सकते हैं जो भी सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग पीते हैं, है ना। सो ये इस तरीके से जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग को हेल्प करता है कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक से भी कोई भी लिक्विड को पीने में विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉ, है ना। अंडरस्टूड? ओके। जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, आफ्टर द स्ट्रॉ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट द सीरिंज। सीरिंज, वो जो इंजेक्शंस लगते हैं ना, सीरिंज, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रॉपर के बारे में। ड्रॉपर, जिसको आँख में या फिर कान में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ड्रॉपर रहता है ना, ड्रॉप हम लोग गिराते हैं मेडिसिन का, है ना, ड्रॉपर। उसके बाद है नंबर 4, है ना, ड्रॉपर है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा रबर सकर। रबर सकर, इसको भी तुम लोग जानते हो अच्छे से, क्योंकि बचपन में आर्मर वगैरह होता था ना, आर्मर, धनुष बाण जिसको बोलते हैं आर्मर, उसमें एक मिलता था सकर, जो कि ऐसे मारोगे तो दीवार पे जाके जो है वो चपक जाता था, है ना। ऐसा खेले हो ना तुम लोग? हम लोगों ने भी खेला है एक्चुअली। So we will be discussing about these 4 things today. Okay, so let's talk about syringe. How is all of you know that what is a syringe and how it looks and how it works also, है ना? So a glass tube with a nozzle and a piston for sucking in and ejecting liquid is called a syringe, है ना? That is a syringe ना, that is called injections. इंजेक्शन देने के लिए जिसको हम लोग यूज करते हैं जनरली, है ना, उसको ही बोलते हैं सीरिंज। ओके, द सीरिंज ऑल्सो वर्क्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज इट सो? द सीरिंज वर्क्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हेन द नोजल ऑफ द सीरिंज इज डिप्ड इन द लिक्विड and its piston is withdrawn, the pressure inside the syringe is lowered, and the greater the atmospheric pressure acting on the surface of the liquid pushes the liquid up into the syringe. The same thing happens which is happening in the straw, है ना। नहीं तो होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग when we take the syringe and we suck, है ना, when we withdraw the piston. What is the piston? देखो, इसको piston बोलते हैं। Suppose दिस इज योर इंजेक्शन, सपोज कर लो, है ना, इस तरीके से होता है ना इंजेक्शन, इस तरीके, इसमें एक नीडल लगा रहेगा, यहाँ पे क्या होता है, गोल सा होता है ना इसके अंदर, है ना, इसके अंदर ऐसा होता है जिसको हम लोग ऐसे, ये है पिस्टन, है ना, ये जो लंबा सा होता है जिसको अगर हम लोग इस तरीके से लेके प्रेस करते हैं, ऐसे लेके दबाते हैं, तो ऐसे पुश करते हैं, तो वो इंजेक्शन इस बॉटल में जो भी फिल्ड रहता है वो हम लोग की बॉडी में चला जाता है, या फिर अगर हम लोग इसको खींचते हैं तो हम लोग की बॉडी से लिक्विड निकल जाता है ना। तो ये कैसे होता है, यही सवाल है, ये कैसे होता है, ठीक है, यही क्वेश्चन है कि हाउ दिस हैपेंस, है ना। तो देखो, जो क्या होता है कि व्हेन वी विथड्रॉ द पिस्टन, मीन्स नॉर्मली तो इंजेक्शन ऐसे दबा हुआ मिलता है ना, जब हम लोग पिस्टन को उठाते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, विथड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है कि इसमें जितना भी एयर मॉलिक्यूल्स था, जो भी यहाँ पे एयर था, वो सारा का सारा एयर अब निकल गया, है ना। यही तो करते हैं ना हम लोग, कि ऐसे हम लोग लिक्विड में ऐसे डुबोते हैं, लिक्विड में डिप करते हैं और फिर ऐसे खींचते हैं, जो तुम लोग इसमें करते हो। अरे सिरिंज छोड़ो ना, तुम लोग ये देख लो, होली में तुम लोग सब लोग इससे खेलते हो ना, जिसको तुम लोग बोलते हो तो पिचकारी, है ना, पिचकारी, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिरिंज। तुम लोग क्या करते हो, पिचकारी को एक बकेट में, जिसमें भी तुम लोग कलर्स रखे हो पूरा मिक्स करके, उसमें तुम लोग उसको डिप करके क्या करते हो, ऐसे उठाते हो उसको, मतलब उसके पिस्टन को उठाते हो। उठाने से क्या होता है, उसके अंदर जो भी एयर होता है वो सारा एयर निकल जाता है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, व्हेन द एयर इज नॉट देयर, less amount of air is there. So if the amount is less, then the air pressure is also less, and if the air pressure is less, then the atmospheric pressure will be greater, and if the atmospheric pressure will be greater, it will be easier for the liquids to enter the bottle,
बिकॉज द प्रेशर, एयर प्रेशर हैज बीन लोअर्ड, एयर प्रेशर कम हो चुका है। इसीलिए जो है तुम लोग जब ऐसे इसको विड्रॉ करते हो तो एयर प्रेशर अंदर कम हो गया, तो लिक्विड बहुत ही आसानी से अंदर आ जाता है। उसके बाद तुम लोग ऐसे प्रेस करते हो जब, तो क्या है, वो सारा लिक्विड निकल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेस करना मतलब क्या, एयर अंदर जा रहा है, तो एयर एक प्रेशर अप्लाई करता है और वो एयर प्रेशर की वजह से सारा लिक्विड जो है वो उस बॉटल में से बाहर निकल जाता है। यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट। दिस इज व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंडरस्टूड? वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Okay, next we will be discussing about the dropper. Drinking straw हो गया, syringe हो गया, now we will be discussing about the dropper, है ना। ड्रॉपर तुम लोग देखे होंगे कि इस तरीके से एक लिक्विड मान लो होता है, तुम लोग सब अपने अपने घर में देखे होंगे, इस तरीके से एक ड्रॉपर होता है ना, इस तरीके से होता है, इस तरीके से इसके सर पे ऐसे बना हुआ रहता है ना। इसको जब हम लोग प्रेस करते हैं, इसके हेड को, ये जो इसका हेड होता है जो कि रबड़ का बना हुआ होता है, इसको जब हम लोग लिक्विड में डिप करते हैं ना, लिक्विड में डिप करके जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं, इस रबड़ वाले को इसको प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, प्रेस करने से क्या होता है कि यहाँ पे जो एयर है ना, इस बॉडी में जो एयर है वो एयर क्या होगा, प्रेस करने से एयर निकल गया है ना। अगर एयर निकल गया तो अब तो उसमें एयर है नहीं, मीन्स एयर प्रेशर भी कम हो गया। एयर प्रेशर अगर कम हो गया तो ये जो भी लिक्विड है यहाँ पे, ये लिक्विड अंदर घुसेगा ना, और ये अंदर घुसेगा और फिर हम लोग का काम हो जाएगा। तो यही तो हम लोग करते हैं, कि जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो देखना तुम लिक्विड में बबल्स आएगा। बबल्स मतलब क्या, यहाँ से एयर आ रहा है इसलिए बबल्स आ रहा है, एयर निकल गया तो अपने आप लिक्विड अंदर घुस जाता है और हम लोग इसको फिर निकाल के जहाँ भी डालना है वहाँ पे डाल देते हैं, है ना। ये तुम लोग अपने घर पे भी करके इस चीज़ को देख सकते हो, किस तरीके से ड्रॉपर जो है वो काम करता है, हाउ दिस वर्क्स, है ना। अच्छा ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जैसा कि हम लोग को बताएं, रबड़ सकर, है ना। सकर का एग्जाम्पल भी बताएं कि हम लोग कहाँ यूज करते हैं सकर को, है ना। तो तुम देखोगे कि दो क्वेश्चन एक्चुअली सकर से क्वेश्चन पूछता है। इन चारों में से अगर बताएं कि सर अमॉन्ग द फोर विच वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। रबर सकर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, अक्सर यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे। तो दीज टू थिंग्स, अब देखो रबर सकर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो भी सेम ही होता है कि सकर मतलब क्या, एक जगह पे जाके चिपक जाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस का, कि एक स्मूथ सरफेस था, वहां पे हम लोग एक सकर लगाए और उसके बाद एक रफ सरफेस था, इस तरीके से एक सरफेस था, है ना, रफ है, टूटा फूटा है, यहाँ पे हम लोग सकर लगाए यहाँ पे, है ना। तो जब हम लोग सकर लगा दिए तो फिर जब हम लोग सकर को भी ड्रॉ करेंगे, मतलब पुल करेंगे, खींचेंगे, हटाएंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो रफ वाला सरफेस था उससे आसानी से हम लोग सकर को निकाल लेते हैं, लेकिन जो स्मूथ सरफेस है वहां से हम लोग सकर जो है, रबर सकर, उसको आसानी से हम लोग विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये क्वेश्चन पूछता है ना, ये क्वेश्चन पूछता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्या हो सकता है रीजन, ये बताओ। देखो सिंपल सा रीजन है, कुछ नहीं है इसके पीछे। जब हम लोग एक सकर को लगा रहे हैं सरफेस पे, है ना, एक मेरा सरफेस है ना, दिस इज अ सरफेस, इस पे हम लोगों ने एक सकर को रखा। अब क्या हुआ, ये सकर जहाँ पे रखा है, सकर मतलब क्या, एकदम चिपक जाएगा ना सरफेस से। तो जब एक चिपक गया तो चिपका मतलब क्या, जब ये जाके बैठा यहाँ पे, है ना, इस तरीके से, सपोज ये एक सरफेस है, इस पे एक सकर आएगा, एक सकर आके से बैठेगा। जब बैठेगा तो ये जितने दूर रहेगा, इतने दूर, जितने भी दूर है ये, इतने दूर का एयर मॉलिक्यूल्स तो नहीं है यहाँ पे, सारा एयर हट गया क्योंकि ये यहाँ पे आके बैठ गया है, एयर का जगह ले लिया। अब जब ये एयर का जगह ले चुका है तो यहाँ पे तो कोई एयर नहीं है, तो एयर प्रेशर भी नहीं है, तो ये एकदम चिपक गया। अब इसको जब तुम निकालने जाओगे तो क्या होगा, इसके अंदर तो एयर है नहीं, तो इसको बाहर धक्का देने वाला कोई तो है नहीं, और ऊपर से इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो कि इसको अंदर की तरफ ढकेल रहा है, और तुम इसको खींचने आ रहे हो, है ना। तो सवाल यही उठता है कि तुम इसको आसानी से नहीं खींच पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम फोर्स लगा रहे हो और एक अंदर की तरफ खींच रहा है, वो कौन सा फोर्स है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीइंग ग्रेटर, तुम लोग इसको आसानी से नहीं खींच पाओगे, है ना। तो इसका रीजन यही होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीइंग ग्रेटर, इट इज यूजुअली, है ना,
very difficult, है ना, to withdraw the sucker from a smooth surface. वही रफ सरफेस का अगर बात करते हो तुम, जैसे यहाँ पे ये जो सरफेस है, यहाँ पे ये सकर ऐसे है, तो यहाँ पे देखो कुछ एयर मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ पे है ना, क्योंकि सरफेस नहीं, यहाँ पे एयर है कुछ, तो ये एयर भी इसको बाहर की तरफ धक्का देगा, है ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको अंदर की तरफ धक्का दे रहा है, और ये एयर जो है बाहर की तरफ, और हम भी इसको बाहर की तरफ ही खींच रहे हैं। तो बाहर की तरफ खींचने वाला दो फोर्स हो गया, एक एयर भी हो गया, एक मैं भी हो गया, तो यहाँ पे हम लोग आसानी से इसको खींच लेंगे, उतना दिक्कत जो हम लोग को नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर और हम खींच रहे थे बाहर, हम अकेले थे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चूंकि ज़्यादा होता है ना, तो हम इसको आसानी से खींच नहीं पाएंगे, है ना। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट इन रबर सकर, है ना, सक्शन बोलते हैं जनरली इसको, है ना। ठीक है, समझ में आया। इसीलिए अगर हम लोग कोई भी फ्लैट सरफेस या फिर स्मूथ सरफेस पे इसको लगाएं तो हम लोग को विड्रॉ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जबकि अगर कोई भी रफ सरफेस पे इसको हम लोग अगर लगाते हैं, है ना, तो ये उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, है ना। तो ये सारा बात हम लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो जो जो हम बोले याद रखना कि क्या होता है, जब भी हम लोग एक रबर सकर लगाते हैं तो जहाँ पे भी जाता है वहाँ का एयर कम हो गया, मतलब वहाँ का एयर प्रेशर कम हो जाता है। एयर कम होने का मतलब क्या, एयर का प्रेशर कम हो गया, एयर का प्रेशर मतलब एयर प्रेशर, तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो गया। तो इफ द एयर प्रेशर इज रिड्यूस, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको धक्का देगा अंदर की तरफ चिपके रहने के लिए, और हम लोग उसको खींच रहे हैं तो हम लोग के लिए मुश्किल होगा। और वहीं अगर वो रफ सरफेस पे है तो क्या होगा, वहाँ पे एयर है तो एयर प्रेशर भी है, तो एयर प्रेशर उसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है ना, और हम लोग भी उसको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, तो हम लोग के सपोर्ट में एयर प्रेशर है, तो हम लोग आसानी से उसको निकाल लेंगे। समझ में आया। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द एप्लीकेशन। तो इस तरीके से ये सारा कुछ एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जिसको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये भी तुम लोग जान लो कि रबर सकर का जो है वो यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देख लो, तो तुम लोग लिख सकते हो जनरली, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, राइट इट डाउन। फर्स्ट पॉइंट लिख लो कि द रबर सकर्स आर यूज्ड टू होल्ड द ग्लास टेबल टॉप्स। Rubber sucker are used to hold the glass tabletops onto the wooden frames. First point. Next point. Rubber suckers are used for making suction hooks. Used for making suction hooks. बहुत स्टाइलिश हुक वगैरह मिलता है, दीवार में चिपका दो, उसमें फिर तुम की वगैरह लगाओ, बहुत सारा होता है ऐसा, है ना। ओके, लिख लिए। Used for making suction hook, which are fixed on walls, doors and almirahs. Which are fixed on walls, doors and almirahs. Okay. अच्छा, third point लिखो। A suction hook अच्छा नहीं, छोड़ो, थर्ड पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है, वो सक्शन हुक के बारे में, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, बस तुम लोग इतना जान लो कि रबर सकर का जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो अंडरस्टूड दिस इज। सो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेना तुम लोग। दिस विल बी योर होमवर्क टू डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड टू रीड द चैप्टर थॉरोली, है ना। सो आफ्टर दिस वी विल बी स्टार्टिंग द चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। सो this is all about this chapter. Hope you have understood. If you have not understood, you know that what you will have to do, है ना. And at first you'll have to read the chapter thoroughly. Okay, so that's all for today. Bye, have a good day.